Write on the head. Elementary geometrical shapes. Geometrical shapes. Elementary geometrical shapes. Look straight, all of you. Suppose we draw a figure. Suppose I draw it over here. I draw a few points over here, or here. I write it as A, B, C, D. I write it as P, Q, R, S. Don't write, okay? अभी लिखना नहीं है. Everybody look straight. Write the heading and. If the daffodil is visible. Yes. Yes, it is all right. Can you see the board, all of you? Okay. Okay, look straight, beta. Write the heading and just look straight. अभी कुछ लिखना नहीं है. We are discussing. Okay, I have drawn a figure over here. Suppose I draw an angle also. I'm drawing an angle over here. It is P, Q, R. And then I'm marking few points. I'm marking over here some point M. I'm marking over here P. I'm marking over here as A. I'm not taking it P. I'm taking it as suppose Q. Let us take different points. For every point, we are taking different point. We are taking it as N. Okay. Now, see it very carefully. I'm talking about the points which are closer to the figure, or which are outer to the figure, or which are on the figure. ठीक है, you are talking, but अभी कुछ नहीं लिखना. Everybody look straight. ठीक है, we are discussing key points on the figure. जो भी आपके पास फिगर बनी हुई है उसका मतलब क्या है? Outside the figure or in the figure. What do you mean by that? What do you mean by that? See, here I have drawn a figure over here. Don't write anything, beta. हम discuss कर रहे हैं normally. Can you see few points? This is a figure A, B, C, D. कोई closed figure है. उसके इंटीरियर में, उसके अंदर जो जो पॉइंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे पॉइंट्स P and Q, और जो बाहर वाले पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? M and S. सिमिलरली अगर मैंने कोई एंगल ड्रॉ किया है, उसमें क्या होगा? जो एंगल के अंदर अंदर पोर्शन में है, ये इसका इंटीरियर पार्ट है. ठीक है, तो इसके इंटीरियर पॉइंट्स में जो पॉइंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट्स, और इसके जो बाहर वाले पॉइंट्स होंगे जो एंगल के बाहर है, आउटर पार्ट में, उनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स. तो व्हाट आर ऑन द फिगर? ऑन द फिगर वाले कौन से पॉइंट्स होंगे? विच आर ड्रॉन on it. जैसे A is a point which is on the figure, B is on the figure, C is on, D is on. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे आपने एंगल लिखा है P Q R, तो P is a point, फिर उसका नाम दिया गया है P. यहाँ पे भी R एक पॉइंट है, फिर उसका नाम एक R दिया गया है. So P Q R are the point, 3 points which are on the angle. Okay, beta. So you are talking about different kind of points. Do you know what are collinear points? पॉइंट्स की पोजीशन पे डिपेंड करता है. पॉइंट्स की जो पोजीशन होती है, कहाँ पे वो पॉइंट्स लाई करते हैं, किस शेप में लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, द नेम कम्स. ठीक है, रेज योर हैंड इफ यू नो व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स. Did you know? Very good. Very good. Sunflower section. Yeah, lotus section, last girl. Last, who is sitting? That boy is sitting at the last. Who was raising his hand? आगे आओ बेटा. Please come.
Can you tell me what are collinear points? The points which lie on same line are called collinear points. Which lie on the same Line. straight line. It should be straight line. Okay. Suppose, okay, sit down, beta. Very good. If I draw a line over here, सारे के सारे points जो इसके ऊपर lie करेंगे, उनको हम बोलेंगे these are A, B, C are collinear points. ठीक है? If I take a point D outside, then it will not be a collinear. ठीक है? D जो है वो position से बाहर जा रहा है, straight line से बाहर जा रहा है. But B, if I draw a line over here, I will say BD is a points B and D are collinear. A, B, C are collinear as well as B and D are collinear. Okay. Let us write down few points. First, likho. First, for your knowledge, the points which lie on a straight line. On a straight line. Are collinear points. ठीक है, उनके नेम आपने प्रॉपर लिखना है. कोलिनियर पॉइंट्स. उसका कोई पर्टिकुलर नेम आ गया, उनकी जैसे पर्टिकुलर कोई शेप आ रही है, पॉइंट्स की पोजीशन आ रही है, उसके हिसाब से उसका जो है वो नेम हो गया कोलिनियर. ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ इट. कोई पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं. Let us draw points. Let us join them. Suppose मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, which is like that. Right? So collinear points कौन से होंगे? For example, points. पॉइंट्स को हम सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली कैपिटल लेटर से. दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, हर एक जब भी आप पॉइंट्स की बात करते हो किसी भी फिगर में, उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? ए, बी एंड सी. ये तीनों कोलिनियर हो गए. ठीक है, और कौन सा पेयर बन रहा है? डी, ई. दे आर ऑल्सो कोलिनियर. ठीक है, कॉमा डाल के, हमने कॉमा डाल के क्या लिखा पॉइंट्स को? ए, बी एंड सी. कोलिनियर की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे और कौन से कोलिनियर पॉइंट्स है? डी एंड ई. लेट अस टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट, नॉन कोलिनियर points which are not in straight lines, which are not in straight line. ठीक है, अगर वो straight line में नहीं है, we will say they are, what we call them? उनका नेम क्या होता है? नॉन कोलिनियर. yes, are Non-collinear points. नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर का मतलब कि वो आर्बिट्रेरली कहीं भी पड़े होंगे, एनीवेयर, नो पर्टिकुलर शेप. वी नीड नॉट चेक इट कि वो क्या शेप बना रहे हैं. कुछ भी शेप बनाए, बस हमें ये पता है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे. ठीक है, तो एग्जांपल में आपके पास इसी फिगर से क्या क्या आएगा, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? पेंसिल सेक्शन. यस बेटा, फर्स्ट गर्ल, प्लीज कम एंड टेल मी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में व्हाट शुड आई राइट? कौन कौन से पॉइंट्स लिखूंगे यहाँ पे? ग्रुप बताना है आपको, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स बताने है ना. ओके, टेल मी 3 पॉइंट व्हिच आर नॉन कोलिनियर. कोई भी 3 पॉइंट्स बता दो.
अपनी चॉइस से, वेरी गुड। हो सकता है आपका आंसर मेरे से डिफरेंट हो, कोई भी 3 पॉइंट्स बता दो जो नॉन कोलिनियर है। वेरी गुड। ओके, देन सिट डाउन, सिट। आपको इसलिए टाइम लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि कौन से पॉइंट्स बोले। कोई भी 3 पॉइंट बोलो। लोटस सेक्शन, लोटस सेक्शन फर्स्ट बेंच, मिडिल रो बच्चे, यस जल्दी से आ जाओ, कोई भी 3 पॉइंट बता दो। वेरी गुड। माइक ऑन करो। Yes. पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ बी सी एंड सी? क्या मैं लिख सकती हूँ? क्या ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं? बी सी एंड ई। बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, क्या ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं? इफ यस रेज योर हैंड, हाथ खड़े करो। यस, कुछ गलती नहीं है, इसको मैंने आगे बुलाया था। कैन यू सी दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? ओके, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठो बेटा। ठीक है, आप कोई और भी ग्रुप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डी सी ई, आप लिख सकते हो ए डी एंड ई, कोई लिख सकता है डी ए एंड सी। क्या हम डी ए एंड सी लिख सकते हैं? डी ए एंड सी, एंड डी ए सी। प्लीज टेल मी, कैन वी राइट डी ए एंड सी एज नॉन कोलिनियर? हाथ खड़े करो। ये आपको डाउट पूरा होगा कि यहाँ पे ए और सी तो एक ही लाइन में है, बट हमें तो 3 पॉइंट बताने हैं, ग्रुप ऑफ 3 बता रहे हैं, तीनों सेम एक लाइन में नहीं है। ठीक है, डी इज अवे, चाहे वो ए और सी सेम ही लाइन में है, इट इज ओके, बट हमें तो तीनों का कॉम्बिनेशन देखना है कि तीनों के तीनों इकट्ठे एक लाइन में नहीं है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो वट एवर इट इज, कोई भी शेप हो, बट हमें तो ये देखना है कि तीनों इकट्ठे एक लाइन में नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉन कोलिनियर। ओके बेटा, सो सच आर द क्वेश्चंस, you have to see the figure very very carefully. Please take out your module now. Module is with you. अच्छा मॉड्यूल है आपके पास बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कोलिनियर पॉइंट फ्रॉम द फिगर। फिगर में आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें से आपने चूज करने हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, संख्या सेक्शन, रोल नंबर 5, संख्या सेक्शन, रोल नंबर 5, प्लीज आगे आओ। See the figure very carefully बेटा, इसमें फिगर आपको जो दी हुई है, इसमें आपके पास पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है, देन बी पॉइंट है, C point is here and D point is here and E point is again outside. Can you tell me? 5 roll number is absent. Okay, come 6. Roll number 6. कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? आपको दिख रहा है उसमें 3 का कॉम्बिनेशन है। कैन यू टेल मी विच 3 आर कोलिनियर? Everybody see it carefully. ऑप्शंस है, उनको मैच करो। चेक फॉर एसीडी, क्या एसीडी कोलिनियर है? कैन यू सी एसीडी आर कोलिनियर? क्या वो सी टाइप के हैं एसीडी? ओके, सिट डाउन, सिट डाउन बेटा।
ACD, you can see very clearly. काफी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं. A, C and D आपको दिख रहा है कि वो तीनों के तीनों सेम ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं. A यहाँ पे है, C यहाँ पे है और D यहाँ पे है. कितनी अच्छी पोजीशन पे है, तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इसलिए दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. ये ऑप्शन में ABC दे आर नॉट मेकिंग स्ट्रेट लाइन, कुछ और शेप बन रही है. देन CDE it is something else shape. And BCD then again they are not, तीनों together they are not in the same straight line, that's why they are not collinear. ठीक है, इसकी ऑप्शन हो जाएगी A. See the figure very carefully beta. You know you have the understanding, but figure को आपको read करना आना चाहिए. Second one is open curves from the given figures are open curves. If I draw a figure like this, is it an open curve? No, this is not open. If I draw like this, it's open. Something which is open. It could be this shape, it could be this shape. Okay? ऐसी चीज जो हमने फ्री हैंड से ड्रॉ की हुई है and which is not meeting its end. शुरुआत हमने यहाँ से की and it is ending over here. They are not meeting with each other and it is open. तो ओपन कर्व्स में क्या आंसर आएगा? सी इट वेरी केयरफुली, ऑप्शंस को ध्यान से देखो. पहले तो टिक मार्क कर दो, उसके बाद मेरे को ऑप्शंस बताओ कौन सी आएगी. वेरी गुड. रो सेक्शन, फर्स्ट गर्ल. C option. सी ऑप्शन A, B and D. You can see very well A, B and D जो आपके पास पार्ट्स हैं, उनमें आपको तीनों में ही ओपन कर्व दिख रही है वेरी क्लियरली. A, B and D. A, B and D. Yeah. ठीक करो इसको. It is A, B and D. This option A, B and D जो आपको A, B and D parts है उनमें ओपन है, और जो sit down बेटा, वेरी गुड. एंड जो C ऑप्शन है उसमें एक क्लोज्ड फिगर दिखाई गई है जो कि एक ट्रायंगल की फॉर्म में है, which is not, it is in triangle form. तो ये ट्रायंगल क्लोज ट्रायंगल है, आपकी इसके वर्टिसेस, इसके कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, that's why it is a closed figure. Closed curve you can say. Why we call it the curve? Curve क्यों बोल रहे हैं इसको? What do you mean by curve? कौन बताएगा? If I draw a line over here, is it a curve? No, not a curve. If I draw like this, it is a curve? Yes. If I draw like this, it is a curve. If we draw a circle, it is a curve. तो curve means कि free hand से आपका जो है वो other than straight line जो होंगी lines, वो सारी आपकी curves होंगी free hand से जो आपने draw, right? It is not any particular shape, you can say. शेप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट फ्री हैंड से आपने किया हुआ है और इसका कॉर्नर नहीं है बेसिकली. समटाइम आपको कॉर्नर नहीं उसका दिखाई देगा. दे विल बी कर्व्स, राइट? थर्ड वन इज अ फाइव साइडेड पॉलीगॉन. फाइव साइडेड पॉलीगॉन इज जिसकी फाइव साइड्स हो. वेरी गुड, वेरी पढ़ा हुआ है आपने. सल्फा सेक्शन, लास्ट कर्ल. यस, आजो बेटा, थोड़ा फास्ट आओ. Triangle has three sides. Square has four sides, you know. Pentagon has five sides. So उसके name से ही पता चल रहा है. Penta means five. Gon is polygon. Okay, please sit down. Pentagon is a pet name for five-sided polygon. Third question is C option. Fourth question. Sorry, so this was fourth. Okay, then come to fifth question. Question number 5. Question number 5 is, in the figure, the name of angle is what? Name of angle. बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को एंगल का नेम बताने में. So this is a very small question, but very, very important. Is it BAC? Can we write it BAC? No. जब हम एंगल का नेम लिखते हैं क्या सोचते हैं उसमें? What do we think of something? ठीक है,
which is very very important. उसको अगर नहीं सोचा तो एंगल could be wrong also. रो सेक्शन पीछे से सेकंड बेंच कर बेटा. हाँ जी, आजो बेटे. What is the name of this angle? A ACB. ACB. This is angle ACB. It is very important कि आपका जो वर्टेक्स होगा, इसका जो कॉर्नर होगा, उसकी पोजीशन यहाँ पे ही आएगी. वेरी गुड. सिट डाउन. व्हाट इज दैट? अच्छा, यहाँ पे AO है. यहाँ पे आपके पास O है यहाँ पे फिगर में, तो आपके पास AOB ऑप्शन आएगी. कौन सी ऑप्शन है ये बेटा? ऑप्शन डी. यू टोल्ड मी AOB. ओके, सिट डाउन बेटा. गुड. I wrote over here C to ask you the general question, but आपकी जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है उसमें O पॉइंट है, तो O should be in the middle. अगर आपने इसको O को सेंटर में नहीं लिखा, by chance it could be wrong also. You should know कि हमारा एंगल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको O को सेंटर में लिखेंगे. What is the other way of writing? AOB के अलावा क्या इसका कोई और नेम भी हो सकता है? BOA. Yes, many children are speaking. We can call it as BOA also. ठीक है, या तो आपको BOA बोलना है या फिर AOB बोलना है. O की पोजीशन हमेशा सेंटर में रहेगी. ओके. 6th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. It is common points of both the angles. अब पॉइंट्स की बात हो रही है. पॉइंट्स को केयरफुली देखो. आपके पास फिगर है यहाँ पे ऐसी, तो आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि आपके पास 2 एंगल्स हैं, 1 and 2. 2 एंगल्स के बीच में समथिंग इज कॉमन. व्हाट इज दैट? अगर मैं पॉइंट्स की बात अभी नहीं कर रही, क्या व्हाट डू यू सी एज इन कॉमन बिटवीन देम? क्या दिख रहा है आपको? क्या? पेंसिल सेक्शन. रोल नंबर 11. What do you see common? मेरी फिगर के अकॉर्डिंगली. अभी अपनी असाइनमेंट वाली फिगर छोड़ दो. If I write here M N P Q, आपको क्या लग रहा है कि क्या कॉमन है इन दोनों के बीच में? वेरी गुड. N Q बोल रहे हो बेटे? Yes. Okay, थोड़ा सा लाउड बोला करो. When you come near to the mic, speak loudly. And Q is common. Okay, be here. If I write here point T also, Q तो already है ही है. Q की नेम लिखा हुआ है Q का पॉइंट ऑलरेडी वहां पे है. I have written one more point T over here. Which 2 points are common between these 2 angles? कौन से 2 points common आएंगे? बोलो. थोड़ा लाउडली. T नहीं, T and Q. जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं उनको अलग अलग बोलते हैं. ओके. और लाइन का नाम क्या होगा? कौन सी लाइन कॉमन है? यू कैन से NQ इज कॉमन. ओके, प्लीज सिट डाउन बेटा. वेरी गुड. यस. फोर्थ. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करते हैं. अभी हम 6 पे पहुंच गए. ठीक है, 4th करते हैं अभी. ठीक है. सो प्लीज अंडरस्टैंड ओवर हियर. The thing is, many children they make mistake while writing. You should know whenever we are writing about a point, it is represented by a single letter. These are the points जिनको हम single letter से represent करते हैं. When we talk about lines, कोई common line you can say, या फिर line segment, या फिर some ray. ठीक है, जब हम उनकी बात करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स टुगेदर. NQ, उसका नेम है NQ. स्टार्टिंग फ्रॉम N एंड गोइंग टुवर्ड्स Q. ओके. जो पॉइंट्स होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल कैपिटल लेटर से.
Because many children speak like this. When we ask them ki what are the points, they will say TQ. Not TQ, they are T and Q. Please remember. ठीक है बेटा, क्योंकि जो आप बोलोगे वही आप लिखोगे. कई बच्चे उसको आंसर में लिख देते हैं TQ points. तो आंसर इसमें टोटली रॉन्ग हो जाता है. दिस इज रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. TQ point cannot be there. Point हमेशा एक सिंगल होता है. ठीक है बेटा. So be careful and please tell me what is the answer of 6th and common points of both the angles. Very good. I can see many hands now. Is it option C? हाथ खड़े करो. Very good. Yes. Yes. Now there is a comma between that. मैंने यहाँ पे and नहीं लिखा, but यहाँ पे लिखा B, E. They are different. B एक point separate है और E एक point separate है. उनको differentiate किया गया है. There is a difference. Instead of writing and, we are writing comma over here. So which is a correct representation. So this is the option BE, which is C option. ठीक है. 6th question की आपकी C option आ रही है. Okay. पीछे आपका 4th question रह गया था. Let us do that also. A closed figure made up of only straight lines or line segments. Okay. सिर्फ straight line. Very good. Very good. I can see hands. Is it polygon? Sulfur section near the window that I can see your hand, girl. Please come forward. आजू बेटे. And tell me कि क्या क्या example होते हैं. Polygon के examples क्या होते हैं. थोड़ा सा और मेरे को डिटेल में बताओ. Question number 4. Your answer is polygon. Sulfur section. Which option, beta? Ma'am, triangle. Question 7. Question 4, beta. 4. We are talking about 4. ये रह गया था आपका. Made up of only straight lines. क्या नहीं था? Polygon जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से बना होता है. कोई एग्जांपल दोगे मेरे को पॉलीगॉन का? क्या क्या नहीं होते पॉलीगॉन, कैसे कैसे होते हैं, थोड़ा एग्जांपल दोगे? मैम हेक्सागन. हेक्सागन. ओके. और छोटा स्मॉल? पेंटागन. पेंटागन. ओके. स्क्वायर. स्क्वायर एक पॉलीगॉन है. Polygon or not? Yes. Square is a polygon. Triangle is a polygon. Yeah. Okay. Sit down. Very good. Very good. You have come to know. Is a closed figure made up of straight lines. आपने hexagon बताया, which is made up of straight line. Pentagon, which is made up of straight line. वो equal हो या नहीं हो, वो तो different बात है. But they are, it becomes a figure becomes when you join the straight line. जैसे आप पेंटागन ड्रॉ करोगे, it will be like this. एक हाउस की तरह रिप्रेजेंट करेगा पेंटागन, जो कि एक छोटी सी पॉइंट्स को, लाइंस को, स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करने से बना है. सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या होता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन? स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन. आपने बोला क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन. यस. लोटस सेक्शन बेटा, फर्स्ट बेंच. स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन. ट्रायंगल. ट्राइंगल. स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन हमारे पास ट्राइंगल है. क्योंकि बाय बिकॉज इससे छोटी कोई और फिगर नहीं आएगी जिससे हम एक क्लोज फिगर बना पाए. ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं. उनको जब ज्वाइन करेंगे ये ट्राइंगल बनेगा. वेरी गुड बेटा. सिट डाउन. वेरी गुड. 7th क्लास में भी कई बार बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता होता कि स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन क्या है. वो सोचने लग जाते हैं कि क्या है. आई अप्रिशिएट योर आंसर. क्योंकि अगर आप 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा? नॉट बी क्लोज. क्लोज तभी बनेगी जब आप 3 को आपस में ज्वाइन करोगे. स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन क्या है? ट्राइंगल. ओके. कम टू 7th क्वेश्चन. अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स एंड डैश एंगल्स. दैट यू नो, एवरीबडी नोज. अभी ट्राइंगल आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है. आपको दिख रहा है कि इसमें 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं. 7th क्वेश्चन की क्या ऑप्शन आ रही है?
Question number 7. It is आपकी option. 3 sides and 3 angles. 8th question. A curve which does not cross itself. Does not cross. तो क्या मतलब है? सपोज मैंने एक सर्कल बना दिया, मैंने यहां से शुरू किया और यहाँ पे आके एंड कर दिया। ए से मैंने शुरू किया था और ए पे ही आके खत्म कर दिया। एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इट इज अ क्लोज्ड कर्व, बताइए आपको नेम अभी अभी आपने बताया था, इट इज नॉट ओपन। लेकिन इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, अगर मैं सपोज इसको यहां से शुरू करती हूँ और यहाँ पे ले गई, ए पॉइंट यहाँ था एंड बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये कर्व कैसी बन गई? इस कर्व में क्या हो रहा है? क्रॉस कर रहे हैं, टू जो एंड्स है वो आपस को क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, बट यहाँ पे दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट। क्वेश्चन इज अ कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस ईच अदर। यहाँ पे डज नॉट क्रॉस है, बट यहाँ पे क्रॉस कर रही है। दिख रहा है ना आपको डिफरेंस? तो जो डज नॉट क्रॉस करती है, जो क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, व्हाट डू वी कॉल इट? दैट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। ओके, तो एक ऑप्शन आएगी, इट इज सिंपल कर्व। ओपन कर्व आपको पता ही है, ओपन तो हमने अभी एग्जांपल भी लिखे थे, और क्लोज कर्व जैसे सर्कल हो गया आपका। लेकिन एक ऐसी कर्व भी होती है जिसपे वो क्रॉस करती है एक दूसरे को, तो उसको हम बोलेंगे वो सिंपल कर्व नहीं है। अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस ईच अदर, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल कर्व। दिस वन इज सिंपल कर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन, राइट डाउन, it is A. Okay, let us do assertion reason. First one is I'm writing the answer. ये आपको किए हुए अभी अभी हमने सारे डिस्कस किए थे। राइट डाउन द आंसर्स, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहूंगी आपके साथ। assertion reason के आंसर्स you can write because you have a knowledge of that. 9th question, it is A option. 10th question अभी अभी डिस्कस किया था हमने, it is D option. 11th क्वेश्चन, इट इज बी ऑप्शन। आपको पॉलीगन का पता चल चुका है, एक्सटीरियर पॉइंट्स का पता चल चुका है, कोलिनियर पॉइंट्स का पता चल चुका है। यू कैन राइट दीज, ठीक है, इनके आंसर्स लिख लो। एंड 12th क्वेश्चन आपके पास है ए। तो प्लीज यू कैन डिस्कस एट होम, रीड इट योरसेल्फ एंड मैच द आंसर्स। ओके, कम टू सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे वाले जो क्वेश्चन है, नेम द लाइंस having point E on it. Your time is up. Time हो गया आपका. You can do next time also. Okay, we'll continue next time. Please here. Are you finding this chapter is easy and interesting also? Raise your hand. Very good. Yes. Geometry is very interesting. ठीक है, थोड़ी सी फिगर आपको ड्रॉ करनी है और फिर आपको सब कुछ पता चल जाता है। ओके बेटा, चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।